Welcome again in Learning Shiksha Dwar. In this platform, we are providing you to like a new videos related to the English and all the subjects related to the B.Ed integrated course. You know that the B.Ed integrated are going to be held. The exam will be taken on the 22nd of October in this month. So we have the very less time to cover all the topic, but we are just touching all the topics that are very important related to the B.Ed integrated course. So in the previous video we had talked about the narration, we had completed that chapters. Now in this video we will be further talking about the next topics that are very essential to know about that. So in this video you have already seen that what is the written over there on the top of the board, question tags. So if you go through the previous year questions of any examination that is considered as a competitive exam, you can find easily that there would be some questions related to this chapter that is called the question tags. So I think you must know that what is the question tags, but I will explain a little bit about what is the question tags. So question word is already mentioned over there in tags. So if you talk about the question tags, so like in the B.Ed integrated course or maybe the B.Ed entrance test, there would be the some at least one or two question, or if if there would be no two question, there would be only one question available in the papers. So if you know that, how can you make the question tags? So there would be the very easily you can find out the option and you will get the one score, 1 marks. So and this is very easy chapters. If you know that what is the tense and how can you use the models and all the things like the negative positive sentences, then you can easily make the question tags. So just come on the topics. So you must have seen in the books or any newspaper in newspapers or any books or story books, you have seen much was he or isn't he, this kinds of things. There would be the auxiliary verbs and after that a subject, or maybe the after auxiliary verb there would be the negative notch and after that the any pronoun, that he, she, it, you must have seen. So these things you have come across in the books, that is called the question tag. So if you talk about the question tags, it is not a complete question. What does it mean? That means if you ask a question like that, do you, I am going to write over here, do you know? Do you know me? So you can say that that is a complete question, because it follows all the rules that can be called a question. Do you know me, there is auxiliary verb, after that subject and verb and after that the object. But if you see over here that there is only the auxiliary verbs and the pronoun, that can be the subjects, and all the parts are eliminated, that it is not a complete question. So question tag is not a complete question. First thing is that, and it never, you can never find it alone. What does it mean? It would be always attached with a statement. That means here is written that attached with a statement, like that. Like if you see that was, she, it must come through the any statements. There would be a statement and after that the question tags comes, follows. So there is a two things that you should consider, all of that you keep in your mind, that the question tag is not a complete question and it always comes with a statement. ठीक, अब हम लोग क्या, ये क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है, वो क्वेश्चन मतलब क्या, क्वेश्चन के फॉर्म में, मगर क्या हो, पूरा क्वेश्चन नहीं होता है वो, और ये हमेशा क्वेश्चन टैग जो होता है वो स्टेटमेंट के साथ आता है. वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है? स्टेटमेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे हो सकता है कोई बोले मैं बीमार हूं, मैं बीमार नहीं हूं, तो वो क्या है, दोनों तरह की बात है, मगर उसके बाद जो आएगा क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन के फॉर्म में, उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं. तो दो चीजें क्लियर हो गई कि क्वेश्चन टैग कंप्लीट नहीं होता है क्वेश्चन, उसके अलावा जो क्वेश्चन टैग आएगा हमेशा किसके साथ आएगा? एक स्टेटमेंट के साथ आएगा. अब देखिए, अब यहां से क्या है, अब दो तरह का हो सकता है स्टेटमेंट. There are two types of statement. First would be the positive or negative. So similarly, there would be the two types of question tag. One would be the positive question tag and the second would be the negative question tag. अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का क्या मतलब है और नेगेटिव क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है? सिंपल है कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का मतलब जिसमें नोट नहीं है, मतलब क्वेश्चन टैग हो जो लास्ट वाला पोर्शन हो, किसी स्टेटमेंट के बाद जो आता है, ये इसमें नोट नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा. और दूसरा जो होगा
नेगेटिव क्वेश्चन टैग जिसमें क्या होगा, नॉट के साथ आएगा। जैसे मान लो वाज ही लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये है नेगेटिव। ठीक, तो दो तरह का क्या हो गया, दो तरह के स्टेटमेंट भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसी तरह क्या है, क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो। जैसे यहां पर है सी इज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रही है। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है, हो सकता है यहाँ ये भी कहा जा सकता है वो लिख रही है, मगर क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहाँ नॉट जो लगा हुआ है ये नॉट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सी इज नॉट राइटिंग, तो देखिए यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखिए इस क्वेश्चन टैग में कहीं नॉट नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में नॉट आ गया है। तो इस तरह के टैग को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। कहां से देखेंगे, टैग जो है ये वाला है। ठीक, ये है टैग, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। इस तरह नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है, जिसमें नॉट आ गया हो। ठीक, जैसे इस नॉट सी, यहां इसका फुल फॉर्म ये कॉन्टेक्टेड फॉर्म है। तो सी इज राइटिंग, वो लिख रही है। ठीक है, उसी का क्या है, इजंट सी। ठीक, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग किसको बोलेंगे, जिसमें नॉट वाला हो। ठीक, ऐसा क्वेश्चन टैग जिसमें नॉट दिखे। तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब देखिए यहां इससे क्या निकल के आता है कि अगर स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, मतलब कोई सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो उसके साथ जो अटैच होकर आएगा क्वेश्चन टैग वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्या है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। उसी तरह दूसरा क्या है, स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मतलब कि जो बात कही जाए जिसमें नॉट आए, मतलब कोई स्टेटमेंट हो जिसमें नॉट हो, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। जैसे यहां पर क्या है, नॉट आया यहाँ पर स्टेटमेंट में, ये क्या है, पूरा पार्ट सी इज नॉट राइटिंग, ये स्टेटमेंट है, तो इसके साथ कौन कैसा टैग्स लगेगा, पॉजिटिव। सो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट इफ देयर वुड बी द लाइक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, द क्वेश्चन लाइक अ टैग मस्ट बी इन नेगेटिव फॉर्म। उसी तरह क्या है, अगर नेगेटिव होगा स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हो गया हमारा। अब इसको सवाल यह आता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे हम लोग सेंटेंस जैसे बनाते हैं किसी चीज का, या टेंस में बनाए, मॉडल से बनाए, किस तरह से बनाए, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या होता है, रूल होता है कि ऐसे जाएंगे हम, सब्जेक्ट वर्ब इस तरह करके। तो क्वेश्चन टैग जो भी बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का ही क्या है, रूल है, कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो पॉजिटिव, जानते हैं कि दो तरह का होता है क्वेश्चन टैग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो अगर कोई भी हो किसी तरह का मतलब क्वेश्चन टैग हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या है, जो हेल्प मतलब साथ देता है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं उसको शायद। तो इसमें इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वाज वर्ड, ये सब जो भी होता है, डू डज डिड, ये सब हमारा क्या होगा, पहले आएगा, सबसे पहले, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने के पहले तो उसी को डालते हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को डालेंगे। ठीक, सब्जेक्ट से मुराद यहां क्या है, सब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में दिखेगा, प्रोनाउन के फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट से यहां मुराद क्वेश्चन टैग में क्या है, प्रोनाउन। अगर राम है तो राम को राम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो लिखा जाएगा। तो राम के लिए क्या है, एक लड़का है या मैन है तो उसके लिए ही होगा। उसी तरह गर्ल्स है तो उसके लिए शी होगा, या लेडी के लिए। ठीक है, उस तरह फार्मर्स है तो फार्मर्स क्या एक नाउन है। ठीक है, तो वहां अगर उसको फार्मर टाइप में लिखे हैं, ठीक है, उसके फार्मर के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। एक से ज्यादा फार्मर अकेला है तो ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि लेडी है कि जेंट्स है। ठीक, तो उसके हिसाब से ही शी आ जाएगा। मगर वो फार्मर एक से ज्यादा होगा तो सवाल ही नहीं है जेंडर का, तो सिंगल ग्रुप में आ गया, तो वहां क्या आ जाएगा, उसके लिए आएगा दे। ठीक है, फार्मर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग में। तो ये सब्जेक्ट से मतलब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट से मतलब है प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। तो देखिए इसमें नॉट कहीं नहीं है, नॉट कहीं है नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात की है और सब्जेक्ट की बात की, इसमें नॉट नहीं है, तो ये कौन सा टैग बन जाएगा, पॉजिटिव टैग। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पॉजिटिव टैग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट के लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। तो ये वाला फॉर्म जो होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा पॉजिटिव टैग का, ये हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ आए। जैसे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो देखिए इस पर फॉलो कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसका क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ठीक, वो यार ये पॉजिटिव टैग सिंपल बोल देंगे, ये नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ आया। उसी तरह नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो होगा वो किस तरह का होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसका नॉट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट से मतलब क्या है, यहाँ प्रोनाउन, ऑलरेडी इसको हम लोग बता चुके हैं इसको।
तो ये देखिए ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, तो ये देखिए नॉट आ गया तो ये किस तरह का क्वेश्चन टैग बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। हम ऑलरेडी जानते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग किसकी जरूरत पड़ती है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कब करते हैं जब पॉजिटिव स्टेटमेंट कही जाती है तब, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि क्वेश्चन टैग होता है क्या, क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन ही है मगर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा क्या आता है स्टेटमेंट के साथ आता है। और जब हम जानते हैं कि स्टेटमेंट दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस तरह क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इस तरह का स्टेटमेंट है। पहले अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे, उसके बाद नॉट डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, मतलब किसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में। उसी तरह क्या होगा, अगर पॉजिटिव हमको बनाना होगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो होता है वो लगा देंगे, यही है इसका तरीका। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स कि कैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इंट्रेंस टेस्ट में, तो उसमें किसी भी सेंटेंस से हो सकता है, ठीक, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसके जैसे क्वेश्चन को देखें, ये स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा वो ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो उसका वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से चूज कर लेंगे करेक्ट ऑप्शन, तो वो सही हो जाएगा। तो उसके कुछ नियम है, जैसे हम लोग नरेशन में देखे थे इस तरह, मतलब एक्टिव पैसिव बनाया था जब टेंस का और मॉडल्स का, तो उसी तरह इसमें कुछ नियम है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है। हालांकि ज्यादा नहीं, टेंस अगर आपको सब आ रहा होगा तो कुछ ज्यादा याद रखने की इसमें जरूरत है नहीं, सिंपल कुछ चीज होती है जो उसका मतलब बेसिक चीज है, उसको ध्यान में रखेंगे और उसके बाद बनाएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कुछ रूल्स। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये होगा सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा गया ये प्रोनाउन के बारे में बात होगी। जैसे यहाँ सी ना लिखे हम सीता लिख देते हैं, देखिए इसको समझने के लिए, किसी लड़के का नाम हम लिख देते हैं, यार रमेश लिख देते हैं, ठीक, यहाँ नाम है, ठीक है। तो गीता इज नॉट राइटिंग, तो अब गीता यहाँ नहीं उठा के ला सकते हैं कि इज गीता, नहीं, गीता क्या लेगी, गीता कौन सा प्रोनाउन लेती है, तो वो ही शी लेती है। इस तरह रमेश होता है तो इज ही, ठीक। तो यही यहाँ बात है कि जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट में तो नाउन भी आता है ना, तो हमेशा ये याद रखना है कि नाउन कभी नहीं नेगेटिव, क्वेश्चन टैग में नाउन कभी नहीं इस्तेमाल होगा, किसी तरह का नाउन कभी इस्तेमाल नहीं होगा। न किसी का नाम ले सकते हैं, न उसके बदले में कोई फार्मर भी है तो फार्मर नहीं आ सकता है यहाँ पर, फार्मर के बदले में जो प्रोनाउन होगा वो होगा। फार्मर अकेला होगा तो डिपेंड करेगा लेडी है कि गर्ल, मतलब जेंट्स है ही शी, उसमें होगा। अगर एक से ज्यादा फार्मर तो दे आएगा, सिंपल सी बात। तो हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के तौर पर हमेशा क्या होगा, ये प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिख लिया और सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग जान चुके हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, कितने तरह के क्वेश्चन टैग होते हैं, उसको मतलब स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स को, ठीक है। ये रूल सब अगर रहेगा ध्यान में तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी उसे डील करने में बहुत आसानी होगी। तो पहला तो मैंने बता दिया था पहले ही, मगर यहां लिख दे रहा हूं मैं। पहला जो है रूल्स कि सब्जेक्ट जो होगा, क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, किस फॉर्म में आएगा, ये कभी नहीं हो सकता है नेवर बी नाउन। नाउन मतलब क्या होता है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें किसी तरह का नाम, जितने तरह के नाउन होते हैं उसमें से किसी से नहीं होगा, कलेक्टिव हो कोई भी नाउन हो, ठीक है, उसमें से कोई नहीं हो सकता है किसका, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। उसके जगह क्या होगा, ऑलवेज होगा किस फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में। जैसे आपको दिखेगा कोई नाम है किसी का, अगर स्टेटमेंट में नाम इस्तेमाल हुआ, जैसे मान लीजिए गीता है, तो आपको क्वेश्चन टैग में गीता नहीं दिखेगी, इसके जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जैसे शी होगा इसके लिए तो शी दिखेगा। उस तरह क्या होगा, कोई जेंट्स होगा तो उसके जगह जैसे मान लीजिए कोई नाम हो सकता है किसी का, रमेश, सुरेश, महबूब, जो भी हो, तो उसके जगह उसका नाम नहीं दिखे क्वेश्चन टैग में, या तो नेगेटिव हो क्वेश्चन टैग या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर उस जगह क्या होगा, हमेशा उसके फॉर्म में जो जिस आदमी के बारे में बात कही गई है, जिस नाउन के बारे में स्टेटमेंट में बात कही गई, वो नाउन गायब होगा। उसके जगह क्या होगा, उसके बदले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो इस्तेमाल होगा यहाँ पर। जैसे राम नहीं दिखेगा क्वेश्चन टैग में, गीता, ठीक है। इस तरह से अगर जैसे मान लेंगे जगह का नाम, जैसे अलीगढ़ चाहे पटना, जो भी हो, ये सब आपको नहीं दिखेगा। उसके बारे में बात हो रही है स्टेटमेंट में, मगर उसके बदले क्या आएगा, जो प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल होता है वो आ जाएगा क्वेश्चन टैग में। ये पहली बात ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर है सतीश इज हेल्थी, तो देखिए यहाँ पर नाम क्या है, सतीश, मगर इसके लिए क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता है ये हमेशा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बात जो कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कोई गया मार्केट, ठीक है, तो उसको बोले हैं लाइक यू वेंट मार्केट, डिड यू,
डिडंट यू जैसे मतलब कि तुम मार्केट गए थे, उसी से हम निकलवाना चाह रहे हैं कि क्या तुम नहीं गए थे, इसलिए हम क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट के कंफर्मेशन के लिए, जो हम बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक, तो ये सतीश इज हेल्दी, तो यहाँ पर एक क्या है, पॉजिटिव बात कही गई है, तो इसी को मतलब कहने के लिए कि हाँ हेल्दी है कि नहीं, इजंट ही। ठीक, तो ये कंफर्मेशन है, बोल देगा यस यस नो नो। ठीक है, सतीश जो है, सतीश यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन टैग में, क्यों दिख रहा है, ही दिख रहा है, क्योंकि क्या आता है, सतीश एक जेंट्स मतलब ये मेल कैटेगरी से, तो ये ही लेगा। ठीक, तो ये पहला हमारा क्या हो गया, रूल। दूसरा हो गया क्वेश्चन टैग जो होगा नेवर स्टार्ट्स। ठीक है, कभी स्टार्ट नहीं होगा कैपिटल लेटर से। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आप जैसे यहीं पर देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, देखिए छोट स्मॉल क्या है, स्मॉल आई है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन टैग जो होगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग जो ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक, कहीं पर भी देखें, जैसे यहां पर कोई एग्जांपल लिए हो, जैसे मान लीजिए यहां पर लेते हैं वसंत शी, ये डब्ल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, स्मॉल। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी उसमें तो ऑप्शन में दिया हो सकता है कि दे दे, ऐसे मतलब ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो चैप्टर में होते हैं वहां ध्यान रखने के लिए ये जरूरी है। अगर हो सकता है क्वेश्चन में कैपिटल से दे दे तो वो गलत हो जाएगा, हालांकि मुझको नहीं लगता कि देगा, क्योंकि वो खुद जानता है, वो तो देखना चाहेगा कि आपको सही में क्वेश्चन टैग बनाने आता है कि नहीं, ये नहीं देखेगा कि कैपिटल लेटर ये सब चीजें। ठीक, हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसे नाम दे दे, तो ये आपको चेक कर सकता है। ठीक, तो दूसरा क्या है कि क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। थर्ड में क्या है, ऑक्सिलरी प्लस नॉट। नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव ऑक्सिलरी प्लस नॉट का मतलब क्या है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्वेश्चन टैग, वो हमेशा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, मतलब कि उसका फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कैन प्लस नॉट होता है, तो ये कैन नॉट नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये हमेशा इसका कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होगा, कान। ठीक है, ठीक है, उस तरह अरंट है। ठीक है, आर नॉट को अलग अलग है, एक जगह करेंगे तो अरंट हो जाएगा, इसके बाद इज नॉट है तो इसका तो इजंट हो जाएगा, इस तरह से। तो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, मतलब अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनानी है, नेगेटिव है, तो उसका जो ये होता है ऑक्सिलरी प्लस नॉट जो होता है हमेशा एक जगह दिखेगा आपको, उसका कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए एक्सेप्शन में ये देखना, ये ध्यान में सबसे ज्यादा रखना है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एम आई नॉट जो है, ये हम इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एमंट नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, एम एन टी, ये नहीं होता है, इंग्लिश में कहीं नहीं होता है। अब एक्सेप्शन सवाल हो सकता है क्यों नहीं होगा, ठीक है तो एम इस्तेमाल किया नहीं, मगर अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश में आप कहीं नहीं देखेंगे इस तरह का लिखा हुआ, ये हमेशा दिखेगा आपको इस तरह से, अरंट। तो ये कभी कभी हो सकता है कि ये एक्सेप्शन होता है तो क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से कि बहुत से बच्चों को तो यही पता होता है कि जो होता है क्या, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उसी तरह का होगा। मगर ये देखिए ये स्पेशल केस है, एम आई नॉट की जगह पे होगा अरंट आई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपने लिए जो होगा क्वेश्चन टैग, आई के लिए जो क्वेश्चन टैग इस्तेमाल होता है वो आर में बदल जाता है, अरंट आई। ठीक है, जैसे बोलता हूं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ये नेगेटिव है, इसको बोलेंगे अरंट आई, आर आई इस जगह होगा। ठीक है, एम आई होगा मतलब नेगेटिव के लिए इस जगह होगा। ठीक है, जब नेगेटिव इस्तेमाल होगा तब, आई के साथ जब नेगेटिव होगा, ठीक है, क्वेश्चन टैग, तब उसका जगह अरंट हो जाएगा। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एम आई सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर फोर्थ नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ नंबर जो है पॉइंट, अगर ये इसी से क्वेश्चन आता है ज्यादातर चेक करने के लिए, कि बच्चे को तो पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। मगर बहुत मरतबा क्या होता है, बहुत से वर्ड अपने आप में नेगेटिव होते हैं। बहुत से वर्ड जो है इंग्लिश के, उसको इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, वो स्टेटमेंट को ही नेगेटिव बना दिया। ठीक, तो वो ध्यान रखना है। अगर वो इस्तेमाल हो गया तो अब उसकी जगह क्या होगा, उसका जब क्या करेंगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, हमेशा। जैसे में उस तरह के कुछ वर्ड क्या क्या है, जैसे बेयरली इस्तेमाल हो जाए सेंटेंस में, स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट के बाद ही क्वेश्चन टैग आता है, तो क्वेश्चन टैग के बाद की बात है, पहले जो स्टेटमेंट देखेंगे, जिस तरह का स्टेटमेंट होगा उसी हिसाब से क्वेश्चन टैग बनेगा। पॉजिटिव होगा वो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट आपको दिखे हमेशा स्टेटमेंट में, ये जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट में नॉट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। ये ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस का मीनिंग, मतलब आखिरकार जो है अल्टीमेटली उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव निकल के आ रहा है या पॉजिटिव, उस पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ क्या है, ये सब वर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव होता है, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नोबडी, नथिंग,
ये सब क्या है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अगर ये सब वर्ड अगर इस्तेमाल हो जाए स्टेटमेंट में, तो उसका मतलब ही इसके साथ नॉट तो आएगा नहीं कभी। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग दे लेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे ये वर्ड जैसे ही इस्तेमाल हो गया उसके बाद नॉट इसमें नहीं आया, क्योंकि ये क्या है, इम्प्लिसिट जो होता है ना, मतलब इसके अंदर शामिल ही है नॉट, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि हम आई सेल्डम टेल अ लाई, मतलब हार्डली टेल अ लाई, मतलब क्या हो, मैं मुश्किल से झूठ बोलता हूं, मतलब मुश्किल से क्या, मतलब न के बराबर। तो क्या हो गया ये तो देखने में लग रहा है कि झूठ नहीं बोलने के बारे में बात है, ठीक है, झूठ बोलने के बारे में बात, मगर इसमें नहीं शामिल है, नहीं बोलने का ज्यादा इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस है, मतलब ज्यादा टाइम क्या होता है झूठ नहीं बोलते, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसके बदले में क्या होगा, क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम स्टार्ट लगा देते हैं, इसको ध्यान रखना है। ऐसे वर्ड आपके बुक में होंगे, जो भी बुक होगा ग्रामर का, आप देख सकते हैं, उसमें कुछ वर्ड होते हैं, हमने कुछ लिख दिया है, जैसे सेल्डम दिख सकता है, हार्डली दिख सकता है, स्कार्स में कमी होता है उसका, ठीक है। नोबडी तो अपने आप में है, ठीक है, नथिंग। इस तरह के जब वर्ड होंगे शामिल क्या है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके बदले पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, ही सेल्डम लाफ्स, ठीक है, वो क्या है, मतलब समझ लीजिए कि वो एक कोई आदमी होता है जो नहीं हंसता है, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब सेल्डम हंसता है वो, ठीक, मतलब कि नहीं, उसको देखा नहीं जाता है हंसते हुए, मतलब 100 टाइम में से 2 टाइम्स हंसता है वो, 98 टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ना के बराबर है। तो उसके जगह देखिए ही सेल्डम लाफ्स, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कहीं नोट नहीं आया है, डजंट वाला कोई नहीं आया है, ठीक है। जैसे यहां पर होता ही डजंट लाफ, तो यहां देख सकते हैं क्या, यहां डजंट आ गया, नेगेटिव है, इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव होगा, डज ही, ठीक है, डज ही, ये हो गया क्वेश्चन टाइप। मगर देखिए यहां पर नोट नहीं है, तब भी क्या है, इसमें नोट शामिल है। यहां हमारा क्या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग था, यहां भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, यहां पर ही होगा, ठीक। क्यों है ऐसा है कि यहां पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ड इस्तेमाल कर लिए हैं इसमें हमने स्टेटमेंट में, ये अपने आप में नेगेटिव है, ये पूरी चीज को, ये क्या है, पूरे स्टेटमेंट को नेगेटिव बना दिए। तो इसके बदले अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव। अब यहां पर क्या, आई हार्डली टेल अ लाई, ठीक है, चाहे आई हार्डली चीट, डिसीव, इस तरह से हो सकता है, ठीक। तो ये हार्डली जो है का मतलब ये निगलेक्ट कर देता है, मतलब कि जो आगे वाली बात है ना उसको खत्म कर देता है, मतलब कि हम मुश्किल से झूठ बोलते हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये नेगेटिव हो गया इस वर्ड की वजह से, इसलिए इसमें नॉट नहीं आएगा। अब इसके बदले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्वेश्चन टैग, डू आई, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है, स्टेटमेंट में, जिसका क्या हो, स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दे, सेल्डम, स्कार्फली, रेयरली, ठीक है, नोबडी, नथिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहां नथिंग को ले, हम लिख देते हैं आई हैड नथिंग, देखिए तो यहां नोट तो इस्तेमाल हुआ नहीं, हैड प्लस नथिंग एक वर्ड है, अपने आप में नथिंग मतलब कुछ नहीं है, ये पूरी चीज को नेगेटिव बना दिया। तब इसके बदले में क्या होगा, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिड आई, इस तरह से, चाहे हैड आई यहां कर सकते हैं अगर डायरेक्टली लेंगे, ठीक। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल हुआ हो जो क्या करे, पूरे स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दे, तो क्या उसके बदले में पॉजिटिव क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 4 नियम को देखा है, अब देखते हैं 2-3 नियम को और को, ठीक है। इसमें 12-13 है रूल्स, उसको ध्यान में रखना है, और छोटे छोटे रूल्स है, इसको ज्यादा उतना है। अब ये तो याद रखने की जरूरत है नहीं कि नाम इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर से नहीं देखना। तो ये 2 कोई रूल इस तरह बना दिया गया, मगर कोई रूल है नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्शन इस्तेमाल करना, ये ध्यान रखने की क्या जरूरत है, ठीक है, ऑप्शन में दिया ही होगा, ठीक है, कि जो भी मतलब नेगेटिव इस्तेमाल हो, एग्री प्लस नॉट, उसके ऊपर क्या होगा, कॉन्टेक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एम आई रहेगा, एम आई नॉट, मतलब नेगेटिव एम के साथ नेगेटिव वाला जो होगा इसके बदले में अरंट आई इस्तेमाल होता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये 5th नंबर जो है स्टार लगा दी इसने, ये शायद नहीं बताया हमने। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब किसी में प्रेजेंट नहीं होगा, अगर जैसे मान लीजिए इज, एम, आर वगैरह सब है, मगर किसी में ऐसा देख रहे हैं जैसे मतलब उसमें दिख ही नहीं रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो वो क्या होगा, उसमें डू, डस या डिड इस्तेमाल होगा नेगेटिव क्वेश्चन टाइप बनाने पर। ये किस पर डिपेंड करेगा, टेंस पर डिपेंड करेगा। देखिए असल में ये वाला हो गया, इसको बिठाते हैं, इसको समझने के लिए। तो देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है हमारा कि ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखे नहीं सेंटेंस में कहीं पर, तो ठीक है क्या, इसका मतलब क्या है,
उसमें डू डज या डिड्स लगाकर क्या करेंगे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा टेंस पर। जैसे पर यहाँ एक एग्जांपल है, सी प्लेज क्रिकेट ब्यूटीफुली या वेल लिख सकते हैं जो भी हो एडवर्ब। तो देखिए यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा है, न इज मार कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपल देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। प्लेस है, ठीक है, ये किसको बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब डू डज, सिंपल की बात है। तो उसी से बनेगा ये। अगर पॉजिटिव ये बात है तो डजंट आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा, सिंपल। जैसे माने किसी को हम लिख दे सी डजंट डांस, इससे तो ऑटोमेटिक पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे क्या क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये नेगेटिव है, तो इसके बदले पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या होता है? शी, ठीक है, शी के बदले क्या आ जाएगा? डस, उसके बाद शी। देखना है कि ये शी जो होता है, ही शी, ये क्या लेता है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, मतलब ऑक्सिलरी लेगा प्रेजेंट टेंस में। तो ही शी इट जो भी नाउन होता है सिंगल, वो क्या लेता है? डज लेता है। और जो भी क्या होता है? आई हो, यू हो, दे हो, ये सब लेता है डू। तो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है मगर इसमें डू डज, ये तो दिखने में नहीं लग रहा है ना। जैसे हम इज एम आर होता है, जैसे सी इज डांसिंग, तो यहाँ से क्लियरली पता चल। अच्छा इज है, इज के साथ क्या करना है? क्वेश्चन टैग बना देना, इजंट शी है, इजंट शी। मगर कभी होता है कि ये सब नहीं दिखेगा, डायरेक्टली दिखेगा कि कोई है, इसमें नेगेटिव है ना पॉजिटिव दिख रहा है। ये डिपेंड करेगा टेंस, ये टेंस पर। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट वाला क्या होगा? प्रेजेंट में हम जानते हैं प्रेजेंट में हमको बनाना है क्वेश्चन टैग। तो प्रेजेंट वाले टेंस में क्या होता है? दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है, डू या डज, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो शी क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लेती है? ये फिफ्थ फॉर्म लेती है। फिफ्थ फॉर्म जो लेता है उसके साथ डू डज लगता है, उसी के साथ उसका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो शी प्लेज क्रिकेट ब्यूटीफुली या वॉलीबॉल या जो भी हो, तो यहाँ पॉजिटिव है तो डजंट शी, ठीक। उसी तरह क्या है? मरगूब, कोई लड़के का नाम है, ठीक है, मरगूब स्टडीड हार्ड। अब देखिए यहाँ स्टडीड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर आपको टेंस पता है सिंपल से, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को कौन सा मतलब ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है? डिड, तो उसके साथ बन जाएगा पॉजिटिव है, ठीक, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो मरगूब स्टडीड हार्ड, डिडंट ही, ठीक है। डिड नॉट जो होता है उसका कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे, डिड ही, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। जो आपको ये जो बताया गया है कि जो वर्ड स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देता है वो ध्यान में याद रखना है। बेयरली, रेयरली, स्कार्फली, ठीक है, सेल्डम, हार्डली, नो, नथिंग, जो भी हो तो उस तरह का होगा तो होगा, ठीक। तो ये नियम याद रखना है। अब देखते हैं कुछ और, उसके बाद क्या होगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे वाले नियम। तो चलिए फिर देखते हैं आगे कुछ नियम, ठीक है। इसमें कुछ 12 या 13 नियम होंगे, ठीक है, रूल्स होंगे जिसको ध्यान में रखना होगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है, और बहुत ही कॉमन रूल्स हैं। तो हमने देखा भी। अब छठे नंबर पर क्या है कि स्टेटमेंट क्या हो। स्टेटमेंट जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टैग किसके साथ आता है? स्टेटमेंट के साथ है। स्टेटमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो स्टेटमेंट क्या होगा? उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो, एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया हो। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं कि उसे समझ में आ जाएगी बात, ठीक। तो इसके साथ सब्जेक्ट जो होगा क्वेश्चन टैग का, ठीक है, वो क्या करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? नंबर पर, ठीक है, नंबर पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल से। जेंडर, कौन सा जेंडर है उसमें, ठीक, मतलब ये होगा फेमिनाइन होगा या मस्कुलिन जेंडर होगा, जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। पर्सन ऑफ द नाउन बीइंग क्वालिफाइड फॉर द एडजेक्टिव, जो पर्सन को इस्तेमाल किया गया उस ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे में एग्जांपल, जैसे दिस गर्ल, ठीक है, दिस गर्ल, ये जो दिस, ये गर्ल डायरेक्ट इस्तेमाल होगी, दिस गर्ल इस्तेमाल होगा। इस गर्ल्स की जगह अगर हम मान लेंगे सीता लिख दे या कोई नाम लिख दे, ठीक, तो वो भी क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक। तो ये दिस गर्ल जो है, दिस गर्ल वाज डांसिंग, तो ये देखिए ये डिपेंड करेगा कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है दिस, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो क्या होगा? ये इस्तेमाल हुआ है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल क्या होता है? मतलब वो लड़की है तो क्या लेगी वो अपने लिए प्रोनाउन? जाहिर सी बात है कि शी लेगी, ठीक है। इसी तरह दिस बॉय रहता है यहाँ पर, तो अपने उसके लिए क्या होता है? ही होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन टैग अगर बनाएंगे तो डिपेंड करेगा कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, वो किस पे मतलब बैठेगा, ठीक है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही होगा। तो यहाँ पर गर्ल है, हम जानते हैं कि क्या क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते हैं? नाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे गर्ल क्या है? एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन, मगर है ये नाउन, तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन टैग में। उसके बदले प्रोनाउन जो फिट बैठेगा उसके मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सा है, मतलब नाउन कौन सा क्या लेता है? प्रोनाउन लेता है, उसको ही इस्तेमाल करेंगे। पहले ही पॉइंट में क्या बता दिया है? प्रोनाउन क्या होगा? हमेशा इस्तेमाल होगा।
नाउन कैन नेवर बी यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल क्या है, ये नाउन है, मगर इसके बदले में क्या लेते हैं हम लोग, उसके जगह अगर हमको इस्तेमाल करना हो प्रोनाउन, तो कौन सा प्रोनाउन लेंगे, जाहिर बात है शी लेंगे, तो वही यहाँ आ जाएगा, वजंट शी। ठीक, तो ये हो गया। अब इस तरह है फार्मर्स। फार्मर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मतलब एक खास कैटेगरी में जो मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हैं उसको बोलते हैं फार्मर्स। ठीक, तो ये देखिए फार्मर क्या है, नाउन है, मगर हम इसके बदले में डायरेक्ट फार्मर इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखेंगे फार्मर्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे फार्मर है एक, तो उसमें बहुत सारे एक नहीं है, ठीक है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है इसका, तो ये कौन सा सुटेबल इसके लिए होगा, प्रोनाउन, तो दे इस्तेमाल होगा। जाहिर है बहुत सारे फार्मर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर दूर से बताना हो तो फार्मर ना, उसका मतलब नाउन को हटाकर उसके जगह कुछ इस्तेमाल करना हो तो क्या कहेंगे, दे करेंगे, दे जो है प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग। अब इसको क्या करेंगे, जब क्वेश्चन टाइप बनाएंगे तो यहाँ है पॉजिटिव, तो इसके बदले नेगेटिव आएगा। वर इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लाएंगे, इसका वारंट कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, फार्मर जो है, तो फार्मर यहाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक, फार्मर के बदले में कौन सा प्रोनाउन आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, दे। उस तरह हिज फ्रेंड्स है, तो देखिए यहाँ हिज फ्रेंड्स आर अनहैप्पी। ठीक, उसके दोस्त क्या है, खुश नहीं है, मतलब नाखुश है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना ही क्या है, ये फ्रेंड्स जो है हिज फ्रेंड्स, तो इसमें हिज के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी जिसका फ्रेंड है वो, मान लीजिए ये है, ठीक, इसके फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जिसके बारे में सब्जेक्ट में स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात किया गया है वो क्या लेगा, प्रोनाउन, उस पर डिपेंड करिए, नहीं कि जिसके बारे में बात हो रहा है उसके लिए नहीं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, वो डिपेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, जो इस्तेमाल होगा ये स्टेटमेंट में, उसके किस पर डिपेंड करेगा, उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का नंबर पर, नंबर का ही सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, यहाँ एक फ्रेंड होता है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे अभी, जैसे हिज फ्रेंड्स है, एक आदमी है, उसका एक से ज्यादा दोस्त है, तो एक से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, दे इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, मगर वही एक दोस्त होता तो क्या होता है यहाँ पर फ्रेंड, तो ये अगर फ्रेंड पर डिपेंड करेगा, अगर मतलब वो मतलब फ्रेंड भी क्या है, गर्ल है, गर्ल्स है, ठीक है, अगर लेडी होगी उसमें तो क्या हो जाएगा, शी अपने ले लेगी। ठीक है, अगर वो लड़कों में होगा तो होगा ही, मगर एक से ज्यादा है तो उसमें कोई है ही नहीं डाउट की, मतलब उसके लिए सिंपल दे आएगा। तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, नंबर पर। ठीक है, उसी तरह जेंडर पर डिपेंड करेगा, जैसा ही बताया ना, फ्रेंड में क्या डिपेंड करेगा, वो कौन सा फ्रेंड है, ठीक है, फीमेल में है या मेल में है, तो उसके जेंडर पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, डेमोस्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होगा इसमें स्टेटमेंट में, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट हमको चाहिए क्वेश्चन टैग में, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर पर, जेंडर पर। ठीक, तो यहां देखना था हिज फ्रेंड्स, एक से ज्यादा फ्रेंड्स है, तो बात किसकी हो रही है, इसके बारे में नहीं, जिसका फ्रेंड है उसके बारे में नहीं, उसके फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, आर अनहैप्पी। तो यहां जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के लिए क्या लेंगे, दे लेंगे, तो अरंट दे। ठीक, उसी तरह अगर हम इसको अगर एक ले ले, जैसे हिज फ्रेंड, और कॉमा देखिए हम नाम भी क्लियर कर देते हैं रमेश, तब तो और क्लियर हो गया कि मेल है, तो हिज फ्रेंड रमेश इज नॉट वेल। तो यहां हिज जो है, ये बात हो रही है किसके, एक आदमी के फ्रेंड के बारे में, तो वो उसका फ्रेंड कौन सा प्रोनाउन लेगा, वो क्वेश्चन टैग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रमेश के बारे में यहाँ क्लियर करने, मगर ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा, या समझाने के लिए मैंने रमेश लिख दिया है क्लियर करने के लिए, मगर सिर्फ ऐसे हो सकता है हिज फ्रेंड, तो जिसके फ्रेंड के बारे में बात हो रही है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद कौन सा जेंडर है उसका, अगर वो भी क्लियर है तो उससे हो जाएगा कि ही लेगा कि शी लेगा। ठीक, तो यहां होगा तो क्या हो जाएगा, इजन या नॉट लगा हुआ है, सिंपल होगा इसका इज ही, यही बताने के लिए यहां लिखा गया। ठीक, अब 7वें नंबर पे क्या है, अगर स्टेटमेंट क्या रखता है, स्टेटमेंट जो होगा वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन टैग बनता है, तो स्टेटमेंट के अंदर क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो। अब ये भी होगा कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, तो डिफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, दिस दैट ये सब जो शुरू में होता है इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अगर वो क्या होगा, स्टेटमेंट पे अगर दिस दिख जाए, ठीक है, दैट दिख जाए, दीज दो दिख जाए, वन दी क्या है, देयर दिख जाए, इट दिख जाए, तो इसको क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए क्वेश्चन टैग में जाएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्म, जैसे दिस होगा तो इट हो जाएगा। अब हमको पता होना चाहिए दिस किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ दिस है, दिस गर्ल, तो ये क्या है, गर्ल के लिए इट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात यहाँ लिखा हुआ है दिस, तो ये जाहिर सी बात है दिस कौन किसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे पेन के लिए हो गया, तो पेन के लिए हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल के लिए। ठीक है, उस तरह कोई मतलब कैट वगैरह है, किचन वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ह्यूमन बीइंग के लिए दिस इस्तेमाल हुआ होगा तो उसके लिए नहीं कि हम इट इस्तेमाल कर देंगे, ह्यूमन के लिए इट इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, रियल केस में कोई कर दे कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ क्या है, दिस गर्ल, जैसे यहाँ भी दिस इस्तेमाल हुआ है गर्ल के लिए, तो गर्ल क्या है, गर्ल क्या अपने लिए लेगी प्रोनाउन शी, मगर यही रहता है दिस पेन,
तो दिस तो दोनों जगह मौजूद है, मगर यहाँ दिस पेन है तो ये पेन अपने लिए इट लेगा, ठीक। और ये दिस गर्ल है तो ये गर्ल क्या लेगी, अपने लिए शी लेगी। तो दिस होगा तो इट होगा, ठीक है। दैट होगा तभी इट होगा। हो सकता है कि दिस जो है, दिस इंडिकेट करता है नियर बाय थिंग्स को, दैट क्या करता है, दूर की चीजों को बताता है। तो वो पेन दूर भी हो सकता है, नजदीक भी होता है, कोई भी चीज, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्या है, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट गर्ल होता, दैट गर्ल इज डांसिंग, ठीक। तो दूर की है, वहां भी गर्ल है, फिर भी दैट लगा हुआ, फिर भी उसके लिए शी ही इस्तेमाल, ये नहीं कि दैट हो गया तो उसके लिए इट इस्तेमाल करते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, वो डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन टाइम में कौन सा सब्जेक्ट होगा। इस तरह दीज है, एक से ज्यादा है तो इसके लिए दे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे दीज गर्ल्स, ठीक है, ये गर्ल्स है तो अब एक से ज्यादा गर्ल्स हो गई, ठीक है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये अब अकेले तो है नहीं कि इसके लिए हम शी इस्तेमाल कर लेते हैं, सबको नोट करने के लिए, बताने के लिए, इसके पूरे ग्रुप को बताने के लिए दे इस्तेमाल करेंगे। और दीज पेन भी हो सकता है, दीज पेन्स, एक से ज्यादा पेन्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपने लिए अब इट नहीं लेगा, दे लेगा, क्योंकि पूरे कलेक्टिवली बात की जाएगी उसकी, पूरे जितने भी पेन है उन सबके लिए। अब ये तो है नहीं कि इट इस्तेमाल कर, उसके लिए फिर दे आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देयर है, इट का बदले तो इट ही होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ट से बात क्लियर हो जाएगी। जैसे पढ़े हैं, जैसे हमने लिखा था दिस, दैट, देयर, इट। जैसे मान लीजिए यहां पर दिस पेन इज क्वाइट गुड, ये दिस है तो बताया था कि दिस क्या होगा, स्टेटमेंट में दिस इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग में इट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ दिस इस्तेमाल हुआ है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है पेन, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इजंट इट, ठीक, इजंट इट। ये क्योंकि बात हो रही है, इट क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि बात पेन के बारे में हो रही है, ठीक है। पेन नॉन लिविंग थिंग्स है और उसके अलावा क्या है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही होता है कि दिस पेन इज नॉट गुड, ठीक है, ये पेन ठीक नहीं है, तो उसको अगर उसके जगह उसका जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो वहां करेंगे, ये जब नेगेटिव बना देंगे उसका हो जाएगा पॉजिटिव, इज इट, इस तरह से। अब जैसे देयर है, जैसे यहां पर हम लिखते हैं देयर इज अ काउ, ठीक, इजंट देयर, एक काउ है, ठीक है, वहां पर एक काउ है तो उसको क्या करेंगे, इजंट देयर, क्या नहीं है वहां पर, इस तरह से। इट का तो इट ही होगा, जैसे इट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए इट इस्तेमाल किया है तो ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट। तो ये थे कुछ रूल्स, बाकी जो रूल्स बचे हैं वो क्या है अगली वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखना है, और जो भी इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें अगर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप उसको जाकर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ हमने सिर्फ क्या लिया है, टेंस से सेंटेंस लिया है, आप मॉडल से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो आई कैन रन, ये मॉडल है, ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव बात कही गई है स्टेटमेंट में, कांट आई यहाँ लिख देंगे सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टाइप कांट आई, मतलब क्या ये पॉजिटिव है, और जब उसका क्या है पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ कौन सा, यहाँ क्या है, टेंस का सेंटेंस है, मॉडल के साथ इस्तेमाल हो जाता है। मॉडल क्या है, कैन है, तो उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, कैन नॉट होता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे कांट, ठीक, क्योंकि बता दिया गया है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होता है, ऑक्सिलरी प्लस नॉट का जो होता है उसके कॉन्टेक्टेड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इज नॉट को इजंट, वाज नॉट को वाजंट, ठीक है, इस तरह से। कैन नॉट को कैन नॉट अलग अलग नहीं होगा, एक जगह होगा, कांट होगा, इस तरह से, ठीक। तो क्या करता है, मॉडल हो चाहे कुछ भी हो, नियम सबका एक ही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन टैग, और क्या नेगेटिव स्टेटमेंट तो हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक। और उसके बाद जो रूल है उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए रात। और जो भी मतलब आपके पास वक्त है उसको सही, मतलब जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं एग्जाम में उस सबको कवर करने में आप लोग लगाइए, ठीक है। और if you are new over here in this channel, then you can subscribe the channels and hit the bell icon in order to get the new videos notification instantly.